Hello everyone, welcome to lecture number 8 of our unit number 11, the P block elements of standard 11th. As we know that in lecture number 7 we are continue with our topic is 11.3.3 is diboron, and in last lecture we studied about the introductions of diboron, classification of diboron, and the preparation of diboron. So once again, in a very we have to revise this topic in a very quick time. So we know that the binary compounds of boron, right, with hydrogen are called as in boron hydrides. Actually, boron does not combine directly with hydrogen. Even though number of hydrides of boron are known, so these hydrides of boron are collectively called as a boranes on analogy with a alkanes. So these hydrides can be divided into two different series. One is called as a nidoboranes, such as BnHn plus 4 is the common formula. Likewise, such as a diboron, pentaboron 9, this is hexaboron 10. This is octaboron 12. Same way octaboron, then decaboron. And same way in the case of another series is Hn plus 6 series. So they are called as an arcanoboron, such as B4O10. B4O10 means the tetraboron. B5H11 means pentaboron 11. B6B12, right, means it's called as an hexaboron 12. C8H14 means octaboron 14. B9H15 means nonaboron. So here we know that the when two or more borons with the same number, for example here 5 and 5, right, but different number of hydrogens are known as a for example pentaborans, hexaborans, octaborans, and integer which is given the total number of the hydrogen atoms in the molecule is included in the name so as to distinguish them from one to another. And then preparations of diboron. So we know that by the reductions of boron trifluoride, this is the reduction because this lithium aluminium hydride is a very good reducing agent. So these reducing agents, when we have to take in the case of BF3, this is boron trifluoride. Sometimes it is attached with a ether at 2, right? But in presence of diethyl ether, so we get a diboron plus lithium fluoride plus aluminium fluoride, right? And just we have to balance the reaction, so we have to take a 3 aluminium fluoride. Another laboratory preparations for the diboron or diboron is prepared in the laboratory by the oxidation. These oxidations of sodium borohydride by the actions of with iodine, right? So it's converted into B2H6 plus sodium iodide and hydrogen. And industrially, we have to prepare such a type of compound like on the industrial scale, diboron is obtained by the reduction of this BF3 with sodium hydride at 450 Kelvin. So these are the some process that I have given. Now we move to the properties, right? So after the completion of this process, now we move to the properties of this diboron. Properties means diboron, this diboron compound. Diboron is a colorless, highly toxic gas, right, with boiling point 180 Kelvin. 180 Kelvin. What about the stability, right? So diboron is stable only at low temperature. Diboron is stable only at low temperature. वो लो टेम्परेचर में ज्यादा स्टेबल होता है. However, when diboron is heated in a sealed tube, जैसे मैं यहाँ पे एक diboron कंपाउंड है उसको मैं सील्ड ट्यूब में यानी पूरी पैक की हुई जो ट्यूब होती है उसको हम सील्ड ट्यूब बोलेंगे.
तो उसमें नियर अबाउट में 100 डिग्री से 373 टू 523 केल्विन के आसपास उसको हीट करूंगा. सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अकर एंड वेरियस हायर बोरेन्स आर फॉर्म. जैसे मैं यहाँ पे B4H10 भी बना सकता हूं, राइट. फिर मैं यहाँ पे B6H12 भी बना सकता हूं, B6H12. फिर मैं यहाँ पे B5H11 भी बना सकता हूं. तो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे कई कंपाउंड यहाँ पे बन सकते हैं. जैसे मैंने डाइबोरेन को यहाँ पे हीट किया हुआ है सील्ड ट्यूब में, तो क्या हुआ है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अकर्स एंड वेरियस हायर बोरेन्स आर फॉर्म्ड, राइट. अगर हम उसको केयरफुली कंट्रोल करें, राइट, तो देखिए मैं आपको, तो डिफरेंट इंडिविजुअल बोरेन्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड, राइट. तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी आपको दिखा सकता हूं. फिर उसकी कंबस्टिबिलिटी के बारे में बात की रही है कि भाई अगर मेरे पास डाइबोरेन कंपाउंड है, राइट, सो व्हेन इट्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन या इसका हम कंबंसन कराएंगे तो वो कहां पे चला जाएगा, B2O3 में चला जाएगा, पानी यहां से निकल जाएगा और इसका जो कंबंसन एंथैल्पी होगा, राइट, डेल्टा H स्टैंडर्ड कंबंसन, वो नियर अबाउट मुझे मिलेगा -1976 किलो जूल पर मोल. यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां से हीट निकल रही है. सो इसका मतलब यह हुआ कि इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर. यानी जैसे ही हम उसको एयर में रखेंगे तो वो फायर को कैप्चर कर लेगा और इट बर्न्स इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग इन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट. यानी वो ज्यादा हीट से वो यहाँ पे चल रहा है. इन शॉर्ट, लाइक डाइबोरेन की तरह हायर जो मेरे पास बोरेन्स होते हैं वो भी स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर, राइट. तो मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि ये तो बोरेन की बात थी, लेकिन जो हायर बोरेन्स मेरे पास जो भी होते हैं, हायर बोरेन्स विच इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली राइट बर्न इन एयर. चलो, ये तो आपको समझ में आ गया. अभी जो यहाँ पे अभी बात करेंगे, अब हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, यानी पानी में हम डालेंगे तो क्या होगा. जैसे मेरे पास B2H6 है विच इज गैसियस इन नेचर, राइट. अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी इसका पानी के साथ जैसे मैं रिएक्शंस करवाता हूं, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड, वो बोरिक एसिड में चला जाएगा क्योंकि वो उसकी स्टेबल पोजीशन बोरिक एसिड में ज्यादा है. तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड. सो बोरॉन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म अ बोरिक एसिड. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इस तरह से बोरिक एसिड मिलेगा. तो आप देख सकते हैं कि डाइबोरेन जो है वो बोरिक एसिड के साथ मींस इसका हाइड्रोलिसिस करने से मुझे बोरिक एसिड यहाँ पे मिलेगा. तो ये थोड़ी हाइड्रोलिसिस के बारे में मैंने बात की थी. अभी रिएक्शंस उसका मुझे करवाना है, कहां पे उसका रिएक्शंस करवाना है, विथ अ लुईस बेस के साथ में उसका रिएक्शंस करवाता हूं, राइट. देखिए, रिएक्शंस विथ लुईस बेसिस, डाइबोरेन ऑन ट्रीटमेंट विथ लुईस बेसिस. तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट अंडरगोस क्लीवेज टू फॉर्म बोरेन एंड विच देन रिएक्ट्स विथ अ लुईस बेस टू फॉर्म एडप्ट्स. जैसे मैं आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको B2H6 के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने उसका रिएक्शंस करवाया है. किसके साथ करवाया है, लुईस बेस के साथ मैंने उसका रिएक्शंस करवाया है. देखिए, ये जो है ना ट्राई मिथाइल एमाइन है, इसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है. तो ये जो आप देखेंगे तो ये जो होता है वो लुईस बेस है. तो लुईस बेस से डाइबोरेन का जैसे मैंने रिएक्शंस करवाया, तो पहले उसमें क्या हुआ कि अंडरगोस क्लीवेज टू फॉर्म अ बोरेन. तो वो पहले कहां पे चला गया, जैसे देखिए वो सिंपली बोरेन में चला गया है, सिंगल जो बोरेन था वहां पे चला गया है. और फर्दर मैं उसका एक और रिएक्शंस भी करवाना चाहता हूं, जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शंस करवाता हूं, राइट. तो वही सेम प्रोसेस से मुझे क्या मिलेगा, 2BH3 into CO. समझ में आ गया. तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि डाइबोरेन अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शंस विथ लुईस बेस टू गिव बोरेन एडप्ट्स. जैसे BH3 और L का जो भी प्रोसेस होगा, यानी उसको हम लिगेंड भी बोल सकते हैं, या लॉन पेयर वाला जो लुईस बेस है वो भी हम उसको बोल सकते हैं. तो ये जो दोनों रिएक्शंस मैंने आपको जो दिखाए थे वो मैंने रिएक्शंस विथ लुईस बेस के साथ मैंने उसके रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिखाए हैं. समझ में आ गया. फिर मेरे पास एक और पॉइंट्स है यहाँ पे, मैं एमोनिया के बारे में भी आपके साथ बात करूंगा.
कि जैसे मेरे पास रिएक्शंस विथ अमोनिया के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरे पास डाइबोरेन है, जैसे मैं आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये डाइबोरेन है और डाइबोरेन का जैसे मैंने रिएक्शंस अमोनिया के साथ लोअर टेम्परेचर पे मैंने करवाया है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर टेम्परेचर पे करवाया है तो मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है 2BH2, दिस इज NH3 ट्वाइस प्लस, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो है BH4 माइनस। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डाइबोरेन होता है वो कंबाइंस विथ एमोनिया टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट राइट, B2H6 into 2NH3 फॉर्मुलेटेड एज ए, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अगर फिर भी हम उसको ज्यादा टेम्परेचर पे यानी 473 केल्विन पे उसका रिएक्शंस करवाएंगे तो वहां पे मुझे यहाँ पे ये कंपाउंड मुझे मिलेगा राइट 12H2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोरेजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोरेजिन, और उसको बोरेजोल भी हम बोलते हैं। ये जो बोरेजिन वाला जो पॉइंट है वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये हम इसको बोरेजिन को इनऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम उसको बोलते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डाइबोरेन कंबाइंस विथ अमोनिया टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट। जैसे एडिशन, ये जो आप एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा आप देख रहे हैं, उसको शॉर्ट में मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ B2H6 into 2 एमोनिया, लेकिन उसको फॉर्मुलेटेड इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। फिर से मैंने 473 केल्विन पे उसको डीकम्पोज किया तो ये जो मुझे कंपाउंड मिला वो वॉलेटाइल कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उसको हम बोरेजिन या बोरेजोल भी बोलेंगे। ये जो बोरेजिन के बारे में हम देखना चाहेंगे तो बोरेजिन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्टीरिक विथ बेंजीन। ये बोरेजिन में अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से आइसो इलेक्ट्रिक है या आइसोस्टीरिक है, तो उसका मैं स्ट्रक्चर भी अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं। थोड़ा मैं उसको ये जो स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपके साथ ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि क्यों इस तरह से वो कंपाउंड यहाँ पे दिखा रहा है और उसकी स्टेबिलिटी का जो रीजन भी है वो मुझे क्या मिल रहा है, आप देखिए। So we know that the borazine is a isoelectronic. What is the meaning of isoelectronic? It means that same number of electrons, and isosteric. Isosteric means same number of atoms, right? With a benzene. So some people says that the structure of borazine and benzenes both are very much similar. No, it's not true. Why it's not true? Because in the case of benzene, right, so the pi electrons are completely delocalized, but in the case of borazine they are only partially delocalized. So here this is a structure of a borazine. So once again it's a structure of borazine, 3 nitrogen 3 boron at the alternative positions. So we know that this lone pair now is shifting to here, so it's converted like that, and n having a plus charge. Right? Same way, another lone pair of nitrogen which can be shifted to this BN bond. So definitely there is a double bond characteristics and having a plus charge. Right? And same way, another third one, nitrogen means their lone pair, they're shifting towards between N and B. So there is a alternate double bond and N having a plus charge, and boron gain one more electron. So boron is a minus in charge. So it's a resonance between this borazine structure. And in the case of this benzene, the all 6 pi electrons which can be delocalized over the system, but here is not that much delocalized. It's a partially delocalized between B and N, B and N, but not fully delocalized over the system. So but here because of its similarity with the benzene, so borazine is sometimes called as an inorganic benzene, right? This is called as an inorganic benzene. So once again, benzene is isoelectronic, means same number of electrons. Isosteric means same number of the atoms with the benzene, and its structure is similar to that of the benzene, but except that in the benzene the pi electrons are completely delocalized in the benzene, but in the case of borazine they are only partially delocalized. But because of its similarity with the benzene, this borazine is called as an inorganic benzene. So this is all about the reactions with ammonia, right? After the reactions of ammonia, now we shifted to the another point, and this point is a formation of complex carbohydrate. Okay,
Next point is the formation of complex carbohydrate. Borohydrates. So several metal hydrides like sodium hydride, lithium hydride, so they are called as metal hydrides. They react with a diborane to form a tetrahydridoborates, right, which is commonly called as borohydrides. Okay, once again, when sodium hydride reacts with this diborane B2H6, so it's converted into Na plus and BH4 minus. So it's 2Na plus BH4 minus. So the name of this compound is sodium borohydride. Sodium borohydrides, right? This is a sodium hydride. Another example, same way in the case of lithium hydride, when it reacts with a diborane, so it's converted into 2Li plus and BH4 minus. So it's called as a lithium borohydride. The name of this compound is lithium borohydride. Okay, once again, several metal hydrides like sodium hydride, lithium hydride, they react with diborane to form what? Tetrahydridoborates, commonly known as borodihydrates. So all these borohydrate dihydrate, they are having a tetrahedral BH4 minus ion, right? We know that both sodium and lithium borohydrate, because that's why this lithium and sodium borohydrate, they are used as a reducing agent in organic synthesis, and they also serve as a starting material from many other borohydrates. So this is the case that we have to open about the some formation of complex borohydrate. After this completion, now we move to the another portion. Is the main point is the structure of diborane. Now we mainly focus on a structure of diborane B2H6. इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे यही पॉइंट दिखाना चाहता हूं. The structure of diborane is very interesting, right? अब देखिए मैं क्या बोलता हूं. इन diborane, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं B2H6, each boron atom has a 3 valence electron for sharing. देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास जो बोरोन है उसके पास देखिए ये इस तरह से H होता है, राइट. दूसरे जो बोरोन है उसके पास भी H, यानी ये H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, राइट. तो अब फिर से मैं दिखाना चाहता हूं कि इन डाइबोरेन ईच boron atom has a 3 valence electron for sharing. If we assume that each boron forms 3 covalent bonds with the 3 hydrogen atoms, but then there are no electrons left with boron atoms for sharing with another boron atom. So I think so there is no electrons between this boron and boron. Therefore 2 boron atoms cannot be linked. This suggests that unlike ethane, which has CC bond, diborane does not have a BB bond. In other words, the structure of diborane is not similar to the ethane. Sometimes the structure of ethane which can be written like that, because in the case of ethane, carbon having a tetravalency, but here the boron having a trivalency, so the structure is not similar to that of the ethane. That we have to solve. तो अभी क्या होगा कहानी में, मुझे तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होगा तो किस तरह से होगा. तो देखिए वहां पे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो मेरी एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस, यानी प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. अब देखिए प्रैक्टिकली मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपके पास, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपके पास प्रैक्टिकली कि देखिए यहाँ पे है ना जो बोरोन है, आप देख रहे हैं बोरोन, राइट. उसने क्या हुआ है, इसने एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे लिंक किया हुआ है, दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके साथ यहाँ पे उसने लिंक किया हुआ है.
इस तरह से दूसरा बोरोन भी आप यहाँ पे आप देख सकेंगे, ये आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन है, और ये भी आप देख रहे हैं वो भी हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अभी देखिए मैं क्या करता हूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक प्लेन के बारे में मैं बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए ये एक प्लेन पे पड़े हुए हैं, यानी ये एक्स वाई एक्सिस ऊपर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये बोरोन का जो एटम्स है, यहाँ पे भी बोरोन का जो एटम्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से मैं चला जाऊंगा तो हाइड्रोजन आपको एबाव प्लेन या बिलो प्लेन में दिखाई देंगे, राइट। एबाव और बिलो प्लेन में दिखाई देंगे। देखिए ये जो बॉन्ड एंगल है नियर अबाउट विच इज 97 डिग्री का है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं वो 120 डिग्री का है। ये जो बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ की, जो यहाँ की वो 119 पाइकोमीटर की आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना वो 134 पाइकोमीटर की आप बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं। और दो बोरोन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बोरोन के बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन बोरोन और बोरोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 178 पाइकोमीटर है। यानी मैं आपको इस तरह से भी दिखा सकता हूं, इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो है 178 पाइकोमीटर। ये मुझे कौन दिखा रहा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस दिखा रहा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है या उसका जो स्टडीज है वो मुझे दिखा रहा है कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर्स इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए अभी उसको हम धीरे धीरे हम इसको मैक्रो टू माइक्रो लेवल में जाएंगे। इन दिस स्ट्रक्चर आप देखेंगे दो टाइप के यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये जो आप 4 हाइड्रोजन एटम्स आप देख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑन द लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट साइड बाय थिक लाइंस। तो जो हम 4 हाइड्रोजन देख रहे हैं जो थिक लाइन वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आपको मालूम है, वो टर्मिनल पे पड़े हुए हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन्स बोलेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन्स बोलेंगे। एंड दिस 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स एंड 2 बोरोन एटम्स, ये 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन वो एक ही प्लेन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो 2 हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं विच इज 1 लाइन अबाउ एंड 1 बिलो दिस, दे फॉर्म अ ब्रिजेस, उसको यहाँ पे उसने ब्रिज बनाया हुआ है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बाकी के जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझे वो डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन बोलेंगे, ब्रिज, क्योंकि वो ब्रिज बना रहे हैं दोनों के बीच में, राइट। सो दस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन B2H6, यानी यहाँ पे मुझे 2 टाइप के बॉन्ड मिल रहे हैं। देखिए फिर से मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूं, जो आपने देखा था द 4 टर्मिनल BH, यानी जो आपने 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आपने देखे हैं, वो क्या है, तो कि वो बिल्कुल नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ही है। hence are quite strong। ये जो चारों हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं तो वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन DH एंड एटम, हेंस आर कॉल्ड एज 2 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2 सेंटर है, 2 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, या हम उसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या हम उसको क्या बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कई बार आपको इस तरह से भी दिखाई देगा, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये तो पहला वाला मैंने आपको दिखा दिया। अभी जो दूसरा वाला है जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है या इंटरेस्टिंग हम इसको बोल रहे हैं, वो क्या है कि जो 2 ब्रिजेस जो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, 2 ब्रिज बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। 2 ब्रिज बॉन्ड्स, कौन सा वाला ब्रिज बॉन्ड है, B.H.B, राइट। सो दे आर क्वाइट डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है हम देखेंगे, फ्रॉम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, फ्रॉम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। जो मेरा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उससे वो काफी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है,
because each bridge hydrogen is bonded to two boron atoms by a pair of electrons. यानी उसको हम क्या बोलेंगे, अब देखेंगे 3 सेंटर है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हम बोलेंगे ना. इसके सेंटर क्या है फिर से आप देखेंगे. ईच ब्रिज हाइड्रोजन, ये आप ये जो आप हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये ब्रिज हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू 2 बोरोन एटम्स बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे आप देखेंगे 2, राइट. तो उसका मतलब ये हुआ कि 3 सेंटर पेयर इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हम बोलेंगे. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यानी हम इसको 3C2E इस तरह से भी दिखा सकते हैं. यहाँ पे क्या था, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स था. यहाँ पे 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है. सो इसकी वजह से क्या हुआ कि 3 सेंटर, सो हेंस द बॉन्ड आर क्वाइट वीक. वो थोड़ा वीक बॉन्ड हो गया है बिकॉज ऑफ द रिबल्सन्स. इसको हम बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं. ये क्या हुआ है, बनाना बॉन्डिंग हम बोलेंगे उसको. देखिए यहाँ पे पूरा है कैसा, जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक दूसरा बॉन्ड है, तो दोनों तो बनाना बॉन्डिंग भी हम इसको कह सकते हैं. और वो थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, लेकिन उसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कहेंगे. आगे वाले को मैंने बोला था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस. अभी कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी क्वेश्चन होता है कि सर जी ये आप जो दिखा रहे हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से प्रैक्टिकली वो प्रूव हुआ है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन से हम कुछ समझ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से देख पाएंगे. तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं. मेरे पास 5 नंबर बोरॉन है. आपको पता होगा कि उसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2p का एक इलेक्ट्रॉन है. समझ में आ गया. ये जो मैं दिखा रहा हूँ 2s है, 2p है, और अभी मैं दिखा रहा हूं वो है ग्राउंड स्टेट के बारे में आपने बात की थी. इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. फिर मैंने क्या किया, ये जो 5 नंबर बोरोन था उसमें जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके 2p में चला गया, राइट. वो पाउलिंग का जो एक्सप्लेनेशन था, तो वो जो 5 नंबर बोरोन अभी मैंने उसको बाहर से एनर्जी देके एक्साइटेड स्टेट में वो चला गया है, राइट. अभी जो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मुझे रखना हो तो किस लिए रख रहा हूं, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं. The electronic configurations of this boron atom in the excited state is 1s2. यहाँ पे क्या है 2s, ये देखिए ये 2s है और ये 2p है. So 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0. So it undergoes sp3 hybridizations. समझ में आ गए. लेकिन क्या होता है कि the two half-filled hybrid orbitals of each boron atom overlap with the half-filled orbitals of the hydrogen atom, forming normal covalent bond. लेकिन जो तीसरी वाली हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरोन की है वो उसने क्या किया हुआ है कि जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी, यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंट है. समझ में आ गया आपको, ये वैकेंट है तो वैकेंट के घर में वो चला जाएगा. क्लियर हो गया है. फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं. मैं आपको ये फिगर है कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं. देखिए ये जो बोरोन है, तो बोरोन का ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितना है मेरे पास, कितने हैं, 3 है. तो मैं 3 को यहाँ पे रख रहा हूं. देखिए 1, 2 और 3. और चौथी वाली ये ऑर्बिटल है ये उसको मैं डॉटेड से बताऊं क्योंकि वो एम्प्टी है. यहाँ पे क्या आ गया है, हाइड्रोजन अपना प्लेस लेके आ गया है. यहाँ पे भी हाइड्रोजन जिसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते थे, ये बोरोन के ये जो है वो बोरोन है, राइट. टर्मिनल हाइड्रोजन है. उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे बोरोन के बारे में देखेंगे. तो दूसरे बोरोन में ये इसका 1, 2, राइट. और उसका जो 3 नंबर वाला पोजीशन से वो यहाँ पे आ गए. उसकी भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल से उसने यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है अपना. इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने यहाँ पे वो जो ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है. आप देखेंगे फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये जो हाइड्रोजन है, ये जो है चारों जो मैंने दिखाए थे वो तो ब्रिज वाले थे. यहाँ पे जो ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन के साथ उसका ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हुआ है. तो ये जो आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा ना. B है, यहाँ पे आपको H दिखाई देगा, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी B है, यहाँ H है, यहाँ H है. अब दिखाई देगा ये देखिए आप, ये ओवरलैपिंग है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ उसका ओवरलैपिंग हुआ है. तो हम उसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटर
2 इलेक्ट्रॉन, राइट। 1 2 3 सेंटर है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का, जो उसको हम क्या बता रहे हैं, बनाना बॉन्डिंग हम बता रहे हैं। ये जो बनाना बॉन्डिंग की वजह से इस तरह से मुझे ये बॉन्डिंग मिल रहा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं वंस अगेन, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, विच इज स्प्रेड ओवर द 3 एटम्स, 2 बोरॉन 1 हाइड्रोजन, that is why bond is called as a 3 center electron pair bond, because of the shape of the electron cloud formed is called as a banana bond। तो ये कुछ बनाना बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बात मैंने समझाई हुई थी। मोलिक्यूल्स जैसे होते हैं, जैसे B2H6 which do not have sufficient number of electrons to form a normal covalent bond, so अब हम उसको क्या बोलेंगे, they are the electron deficient molecule बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, deficient, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये टाइप का जो बॉन्ड है ना, वो पहले एक बार उसका जो साइंटिस्ट है उसका नाम है विलियम लिप्सोकॉम, उसने ये इसका स्टडी किया था और 1976 में उसको यहाँ पे उसके लिए नोबेल प्राइज उसको यहाँ पे मिला हुआ था। 1976 में उसको नोबेल प्राइज विलियम लिप्सोकॉम को यहाँ पे मिला हुआ था फॉर दिस बनाना बॉन्डिंग्स इन B2H6 के बारे में। तो ये पूरा मैंने आज अभी जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से होना चाहिए, तो ये थोड़ी बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।